I told you briefly about the third definition of Robbins, choice making definition given by Robbins. Did I? And we saw that his definition states that our wants are unlimited but gradable. Resources available are scarce, ठीक है, having alternative uses, ठीक है ना, that makes them more scarce. So we are confronted with the problem of making a choice. Therefore, the definition is termed as choice making definition or scarcity definition. Choice making क्यों? क्योंकि we have to classify our wants into urgent and less urgent, ठीक है ना. Resources have alternative uses, so we have to decide, plan what to produce, how much to produce, how to use the available resources. And हम दो जगह we are confronted with the problem of making a choice, and this choice becomes necessary because the resources are relatively scarce. Is that clear? Therefore, this definition is known by two names: choice making definition and scarcity definition. Is that okay? So if you recollect, I said in the beginning both the names, choice making and scarcity definition. But I explained you one important aspect of this definition, that Robbins' definition is static in nature. Static means it considers only our present wants and the available resources. It neglects, or you can say it fails to foresee that with the passage of time our wants multiply, our wants change, and accordingly therefore new resources are to be found out, and additional resources, new resources are to be found out. Is that clear? Which, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी आर रेफरिंग इनडायरेक्टली टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है. टुडे वी हैव ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू जनरेट द पावर, ठीक है ना. जब इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो वो क्या दर्शाता है, ग्रोथ हो रहा है, चेंज हो गया है, चेंज इन अवर वांट्स. मैं बोल रहा था ना, एक समय था रेडियो होना घर में बहुत बड़ी बात, ठीक है ना. टेलीफोन तो किसी किसी के घर होता था, रेफ्रिजरेटर किसी किसी के घर होता था. एज अ चाइल्ड आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, सो आई एम टेलिंग यू. बट टुडे इट इज अ नेसेसिटी. टुडे वो सब क्या बन गया है, नेसेसिटी बन गया है ना. तो पावर का कंजम्पशन बढ़ा तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन भी हमने ढूंढे. एंड ऑल दिस shows what, economic growth and development. But Robbins talks only of today, not of future. इसलिए हम उसकी डेफिनेशन, मैंने आपको सेंटेंस बोला खास लिख लिए कि इट डज नॉट कवर द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है. फोर्थ एंड लास्ट, फोर्थ डेफिनेशन एंड लास्ट डेफिनेशन, growth oriented definition, growth oriented definition, or dynamic dynamic, DYNAMIC, dynamic definition by Paul, PAUL, Paul Samuelson, SAMUELSON, Paul Samuelson, PAUL, Paul, SAMUELSON, Samuelson. So what is the name of the definition? Growth definition or dynamic. Dynamic इसलिए कि जब हम चेंजेस कंसिडर करते हैं तो हम बोलते हैं वो डायनेमिक एस्पेक्ट है. कहीं पर भी बदलाव जो आता है, ठीक है ना, तो उस बदलाव के आने की वजह से हम बोलते हैं वो क्या बन गया है, डायनेमिक बन गया है. तो हमारी इकोनॉमिक में चेंजेस आते हैं तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक डेफिनेशन बोली है, ठीक है. नाउ पॉल सैमुएल्सन वाज द फॉलोअर ऑफ रॉबिन्स. तो अगर मैं एक्चुअल वर्डिंग्स आपको सुनाऊं तो वो इट इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम. बस एक फर्क है
कि पॉल सैमुएल्सन हैज इंक्लूडेड द एलिमेंट ऑफ टाइम. आप लिख लें, included element of time, included element of time by using inverted comma में, by using over time, close the inverted commas, and again inverted commas में, now and in the future, now and in the future. आप ध्यान दें, रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी, wants are unlimited, resources are limited, having alternative uses, पूरी डेफिनेशन वही है. बीच में ये दो फ्रेज डाल दिए. कौन से? ओवर टाइम, नाउ एंड इन फ्यूचर. यानी डेफिनेशन वही है, मगर वो आज की भी बात कर रहे हैं और फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं. तो जो चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम in the nature of our wants keep on changing, wants keep on multiplying, ठीक है ना? And to satisfy that, those ever increasing and changing wants, he refers to the growth of resources also. Is that clear? Since he considers the present as well as future, his definition is termed as growth oriented definition or डायनेमिक डेफिनेशन. आई होप दैट्स क्लियर. तो ये इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, 4 डेफिनेशंस का ब्रीफली जो मैंने आपको बताया. ठीक है, और इनका रेफरेंस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आएगा, तो आपको पढ़ते हुए ये रिकलेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो अब एक्चुअल में हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1. अभी तक तो मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा था, मैंने बहुत कम दिया और अपने आप को बहुत कंट्रोल रखा, नहीं तो मैं तो बोलने लगूंगा तो फिर there are so many things I can keep on speaking. तो let us restrict ourselves to what is needed, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एक्स्ट्रा बता दिया, ज़्यादा बता दिया तो. चलिए, what is economics all about? The word economics is derived from Greek word oikonomia, which means household management. Now what is household management? सेम थिंग, ठीक है ना? एक हाउसहोल्ड की वॉन्ट्स आर मैनी, रिसोर्सेज आर स्केर्स, so the head of the family has to decide how to use the resources so that the maximum wants of the family members can be satisfied. वही तो हाउस मैनेजमेंट है, ठीक है ना? यानी आप डे टू डे लाइफ में हर रोज इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस करते हैं, आप ये जान, ठीक है ना? हॉस्टल में रह रहे हैं, हम घर से 8,000 रुपये महीने आते हैं, 10,000 रुपये महीने आते हैं, वो 10,000 में आपको सब मैनेज करना है. मेस के चार्जेस, क्लोथ वॉशिंग के चार्जेस, स्टेशनरी के चार्जेस, ठीक है ना? दूसरा थोड़ा बहुत जो भी खर्चा है कितने में मेंटेन करना है? 10,000 में, ठीक है ना? और उस प्रोसेस में आप क्या करेंगे? You will grade your wants according to importance, urgency, etc. ठीक है ना? So we practice economics in our day-to-day life in some way or the other. ठीक है? So 19th century तक इसको political economy बोलते थे. 76 Adam Smith published his book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation, which is considered as the first modern work of economics. I said yesterday, he was the first economist, Adam Smith was the first economist to formally define what is economics all about. What is the subject matter of study in economics? ये पहली बार एडम स्मिथ ने बताया, डिफाइन किया, ठीक है ना? अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, ठीक? इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? नाउ जो मैंने डेफिनेशन से बताई वो ध्यान में रखना, वो उसी का रेफरेंस है यहाँ पर. एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ choice. We are going to refer more to Robbins' definition first.
ठीक है, उनका रेफरेंस, बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन विच एक्चुअली डील्स विद द रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इज दैट ओके? सो यू विल फाइंड रेफरेंस मेनी टाइम्स रॉबिन्स की डेफिनेशन का. सो वी आर कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. व्हाई? बिकॉज wants are unlimited. The resources to satisfy unlimited wants are relatively scarce, and these scarce resources can be put to alternative uses. Is that clear? तो यहाँ डेफिनेशन नहीं दी है मगर उसका रेफरेंस तो है. ठीक, मैंने आपसे कहा था रिलेटिव स्केर्सिटी का मतलब क्या है. मैंने आपसे पूछा था कल, डज एनीबडी लाइक पॉइजन? नोबडी लाइक्स पॉइजन. तो पॉइजन का कितना भी कम प्रोडक्शन होगा हम उसको स्केर्स नहीं बोल सकते. बट इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड वेरी मच. ठीक है ना? एज अ रिजल्ट टू द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक पावर, generation and supply may be less. So many times during summers we face this problem of load shedding. Why? Compared to the what? The available resource is scarce. That is relative scarcity. Scarcity of resources in relation to a particular want. Is that clear? Okay. The definition is however narrow. आप स्क्रीन पर देखते हैं, मैंने सब मार्क किया हुआ है. Narrow. And it concentrates only at present. मैंने आपको ये भी बताया था. रॉबिन्स किसकी बात करते हैं? आज की बात करते हैं. सो नैरो है ना, सिर्फ आज की बात नहीं, मगर टाइम के साथ हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं, बढ़ती हैं. अकॉर्डिंगली हमको नए नए संसाधन ढूंढने पड़ते हैं, संसाधन बढ़ाने पड़ते हैं. ठीक है ना? मगर रॉबिन्स कहाँ अटक के रह गए? आज में अटक के रह गए. Therefore his definition is narrow in its scope. It does not cover the future. ठीक, तो okay. Use relative scarce resource. So it gives a picture of the society with the fixed resources. यानी उनके अनुसार जो उपलब्ध संसाधन हैं, they are fixed in quantity. They are fixed in quantity. But reality में होता क्या ऐसा? नहीं. With the passage of time, अगर wants multiply होते हैं तो उन wants जो मल्टीप्लाई बढ़ रहे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए संसाधन रिसोर्सेज भी बढ़ाते हैं और नए नए संसाधन भी खोजते हैं. है ना? मैंने आपको वो सोलार, हाइडल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सबका एग्जाम्पल दिया. ये नए नए रिसोर्सेज टाइम के साथ आए हैं ना. दैट डिनोट्स नथिंग बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. आई होप यू वोंट माइंड. मैं ये बंद कर दूंगा. I have a very serious health issue, so directly AC के आगे बैठना मुझे थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है. आप ये पीरियड के बाद चला लें. तो आई होप यू आर गेटिंग इट. तो फिक्स नहीं है ना हमारे रिसोर्सेज. ठीक है ना? नए नए रिसोर्सेज आ गए हैं. अरे दूर क्यों जाने का? पेट्रोल से गाड़ियां चलती थी, डीजल से गाड़ियां चलती थी, अब बैटरी आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई. अभी कोई और मैं देख रहा था कि हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ियां आने वाली है. अरे बहुत कुछ होने वाला है. ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज आ रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग इट. हेलो. सो मगर तो समय के साथ हम देखते हैं ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, इनोवेशन होता है हर फील्ड में. ठीक है? एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज rises. Production of consumer goods, production of capital goods, new technology comes into existence with the passage of time. Better technology comes into. अब देख एक और simple सा example if we take into consideration. There was a time, you see, when having a telephone at home was a very big, बड़ी बात होती थी. ठीक है ना? आज सबके पास है. ऐसा क्यों? But over a period of time there has been a successful launch of satellites one after the other. Each successive satellite was an improvement over the previous one. As a result, there has been a revolution in the field of communication. I hope you are getting it. तो resources बढ़े, resources improve हुए. नतीजा कि जो ये टेलीफोन कम्युनिकेशन और दूसरे प्रकार के कम्युनिकेशन बहुत ही सीमित थे, आज बहुत कॉमन हो गए.
सबके पास है। आई होप यू गेटिंग इट। ठीक है, तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनोवेशन हुए, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा कैपिटल गुड्स का। ठीक है ना, एक टाइम था इंडिया फ्रांस में जाकर अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता था। नाउ वी लॉन्च द सैटेलाइट्स नॉट ओनली ऑफ अवर डोमेस्टिक कंट्री, यानी अपनी खुद की, मगर दूसरे कंट्रीज की भी लेकर जाते हैं और सैटेलाइट्स छोड़कर आते हैं। हेलो, I hope you're getting it. All this is nothing but growth and development, improvement in technology. And as a result, the production of communication services has increased. ठीक है, तो रिसोर्सेज भी फिक्स नहीं है, हमारे वांट्स भी लिमिटेड नहीं है। आई होप यू गेटिंग इट। अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज भी बढ़ते जाते हैं। मगर ये डेफिनेशन जो हमने, या जो पॉइंट हमने देखा, यहाँ तो डेफिनेशन नहीं दी, जो पॉइंट हमने देखा, अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज, वो फिक्स नैरो है, फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर रियलिटी में ऐसा होता नहीं। मैंने आपको अभी ये कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दिया। ओके, however growth take place over a period of time, growth takes place. With growth there is increase in resources and improvement in the quality of resources. I hope you got it. मैंने आपको अभी सैटेलाइट्स का एग्जाम्पल कोट कर रहा था। ठीक है ना, हर सक्सेसिव सैटेलाइट पिछली जो लॉन्च करी थी उससे बेटर इंप्रूवमेंट है, सक्सेसिव सैटेलाइट्स। I hope it is clear. And as a result, the communication system has improved, expanded and improved tremendously. आजकल कौन लेटर्स लिखता है ना? हम जब पढ़ते थे तो हमको ड्राफ्टिंग सिखाते थे लेटर्स की, बिजनेस लेटर्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं, उनके क्या पार्ट्स हैं, कैसे लिखा जाता है। आजकल आप लेटर्स लिखते हैं क्या? नहीं ना, लव लेटर्स भी नहीं लिखते आजकल तो, है ना? क्यों? दूसरे साधन है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट फास्ट। ठीक है, मैसेज देना है किसी को, बैठे बैठे घर में आपको टाइम टेबल के मैसेजेस आते रहते हैं, हेलो, है ना, डेली बेसिस पर। आई डोंट नो व्हाई। तो बोल, हाँ, टाइम टेबल फिक्स्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ओल्ड स्कूल का टीचर हूं, तो आई प्रीफर हैविंग अ फिक्स्ड टाइम टेबल फॉर द होल सेशन। आई प्रीफर दैट, बट देन you have to make adjustments with the changing times. So, and I prefer having morning period rather than last period of economics, because by that time सबकी हवा निकल गई रहती। फर्स्ट पीरियड में कुछ तो एंथुसियाज्म रहता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो रहेगा। एक ड्रॉबैक है कि फर्स्ट पीरियड में इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे, मुझे ज़्यादा बोलना है, आपको सुनना ज़्यादा है, तो कई बार कुछ नहीं होता, जरा झोंके आने लग जाते और उसकी वजह से सिर कभी ऐसे हो जाता, कभी ऐसे हो जाता। कोई बात नहीं, मैंने बोला आने दो, नींद में क्वेश्चन पूछ के जगाऊंगा। आई लव आस्किंग क्वेश्चन, सो आई कम बैक। ओके, तो हाँ, वही बात है जो मैं आपको समझा रहा था। रिसोर्सेज भी बढ़े, रिसोर्सेज की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का, मैंने तो एक फील्ड का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इमेजिन करिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ, इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, एंड एज अ रिजल्ट वी हैव अ ग्रेटर आउटपुट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। ओके, इकोनॉमी कभी एक जैसी नहीं रहती ना, कभी अच्छा समय रहता है इकोनॉमी में, देश में, कभी खराब समय भी आ जाता है। अप्स एंड डाउन्स कीप ऑन कमिंग। ठीक है, और इस अप्स एंड डाउन में कब क्या करना है, ठीक है ना, कैसे उसको ठीक करना है, इज व्हाट इकोनॉमिक्स टेल्स अस अबाउट, है ना। अगर प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि महंगाई बढ़ जाए, हम बोलते हैं ना इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन हो गया का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ जाना, इज कॉल्ड, है ना, इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल बढ़ जाना गुड्स और सर्विस, और वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा हो और बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है देश के लिए। आम जनता का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, जो चीज़ आप 10 रुपए की लेते थे आप 15 रुपए की ले रहे हैं, महंगाई होने की वजह से। तो ये ऐसे सिचुएशंस इकोनॉमी में आते जाते रहेंगे, इसको मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना।
और एक कॉज क्या है इन्फ्लेशन का, जो मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा था महंगाई का, व्हेन देयर इज मोर सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। इकोनॉमी को जितने पैसे की और क्रेडिट की जरूरत हो, जब उससे ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आ जाए तो महंगाई बढ़ती है। क्यों? आप देखिए, या मैं ऐसा बोलूं कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम होगी ना। आप दुकान में जाते हैं, आपका खर्चा होता है मगर दुकानदार की इनकम होती है। उसी तरह जब सरकार खर्चा करती है तो हमारी इनकम होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी हमारे हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है, हमारी डिमांड बढ़ने लगती है गुड्स। और जिस स्पीड से डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है देश में, उस स्पीड से प्रोडक्शन और सप्लाई नहीं बढ़ पाता। देयर इज अ गैप between demand and supply, and as a result the prices start rising. I hope that's clear. अब ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आ गया, that has to be pulled out, that has to be pulled out. तो वो कैसे करना, कौन सा टूल यूज करना, ये दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। आई होप दैट्स क्लियर। एक एग्जाम्पल कोट किया तो हमको इकोनॉमिक्स जो है, पहले तो रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करना ये समझाता है, उनको कैसे यूज करना, कौन से प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए यूज करना। मैंने कल ही कहा आपसे, रिसोर्सेज आर स्केर्स हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। So if you increase the production of scooters, you have to reduce the production of cars, or if you increase the production of cars, you have to reduce the production of scooters. ये ऐसा होने वाला है because resources have alternative uses. Is that clear? तो ये चॉइस तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। इसलिए एक कमोडिटी का अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एलोकेशन देखा जाता है रिसोर्सेज का। हमको इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी के बारे में आइडिया देता है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, किस लेवल पर पॉवर्टी है, किस लेवल पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, ठीक है ना, ग्रोथ रेट क्या है, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट और विच एक्टिविटी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू द नेशनल इनकम, सेक्टर्स, कौन सा सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंस के बाद 55% नेशनल इनकम एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था, टुडे इट इज सर्विस सेक्टर। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर हैज अंडरगॉन अ चेंज। सर्विस सेक्टर में भी अलग अलग सर्विसेज है। टूरिज्म जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, टूरिज्म सेक्टर विद इन सर्विस सेक्टर, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तीन एरिया है विद इन सर्विसेज विच आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट को तो आइडिया होना ना कौन सी एक्टिविटीज, ठीक है, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। Accordingly, then the government goes for planning for the future, making the policies for the future. I hope that's clear. And all that knowledge we get from the subject economics. ठीक है, बोलने को तो बहुत कुछ रहता इकोनॉमिक्स में, मगर ठीक है, आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ। समझ में आया जितना मैंने बोला? ओके, अब देखें, अब सवाल ये आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अभी तक तो हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन, यूज ऑफ लॉज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स गिवन टू अस बाय इकोनॉमिक्स। जब बिजनेस डिसीजंस के लिए, ठीक है ना, हम इकोनॉमिक्स द्वारा दिए गए लॉज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस फॉर्म के डिसीजन के लिए, तो इट बिकम्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी यू कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल साइड है किसका? तो इकोनॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स अस विद वेरियस टूल्स दैट कैन बी यूज्ड to take the business
decision. Is that clear? And when those tools are taken, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, जिन्होंने क्या बोलते हैं, ये कहां से आ गया, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स में, ठीक है, उसमें आपने एक प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म पढ़ा होगा. प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. उसका एक और कुछ नहीं, अगर आपको वो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल देता हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी उसी का एक हिस्सा है. साइंस वालों को बता दूं, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि लगातार कम होते चले. एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग अ गिवन कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग. बहुत जोर से भूख लगी है, पहला फुल्का खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, एक फुल्का खाने के बाद थोड़ी सी भूख कम हो जाएगी, तो दूसरा खाएंगे तो जितना पहला फुल्का खाकर संतुष्टि मिली थी, दूसरे से उससे थोड़ी सी कम, तीसरे से और कम. आई होप इट इज क्लियर. और जब 5 फुल्के खा लिए, पेट भर गया, तो 0. आई होप दैट्स क्लियर. दैट सिंपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल है. इज दैट क्लियर? तो डॉक्टर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म दिया था. चलिए यहां यूज कर लेते हैं. मैं एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि हम कैसे इकोनॉमिक्स के लॉ थ्योरी प्रिंसिपल का यूज बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए कर सकते हैं. आई एम गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल. Now, let us suppose a firm has to employ, एक फर्म को वर्कर्स एम्प्लॉय करना है, ठीक है, और उस फर्म को डिसाइड करना है कि कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने हैं, ये डिसीजन लेना है, ठीक है. तो वो दैट डिसीजन विल डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म. मैं जो साइंस से आए उनको ये बता दूं, मार्जिनल वर्ड बहुत बार आएगा, और मार्जिनल वर्ड का मतलब है एडिशनल. एडिशनल, इज दैट क्लियर? और चूंकि हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है. कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है, ठीक है. लागत की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है. आई होप दैट्स क्लियर. I am going to measure the marginal productivity in terms of rupees. Is that clear? चलिए, let us suppose फर्म ने पहला वर्कर एम्प्लॉय किया, ठीक है, उसको 8 घंटे की शिफ्ट के लिए मान लीजिए 1000 रुपए वेजेस पे करेंगे. दिस वर्कर, ठीक है, ड्यूरिंग 8 hours produces the commodity worth rupees say 8000. Is that clear? एक वर्कर एम्प्लॉय किया, 1000 रुपए हम उसको वेजेस पे करेंगे, मगर उस वर्कर ने कितनी क्वांटिटी का
मॉनेटरी वर्थ में प्रोडक्शन किया 8,000 का, तो ये वर्कर एम्प्लॉय करना फायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात? फायदे वाली, यानी वी विल एम्प्लॉय दिस वर्कर, बट दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइक मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन फॉलिंग। अभी मैंने आपको यूटिलिटी का एग्जांपल दिया था ना, पहला फुल्का खाया, दूसरा फुल्का खाया, तो यूटिलिटी कम होती जाती, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल गो ऑन फॉलिंग, विल गो ऑन डिमिनिशिंग। दैट्स द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। सेकेंड वर्कर एम्प्लॉय करते हैं, उसको भी वेजेस कितना पे करेंगे? 1,000 रुपीज पे करेंगे, मगर ये वर्कर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कर रहा है वर्थ रुपीज 6,500 का, पहले के मुकाबले, पहले वर्कर के मुकाबले कम, वो कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? मगर जब हम वेजेस को और उसकी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो इस प्रोडक्टिविटी इज मच मोर देन व्हाट वी आर पेइंग हिम, यानी कि सेकेंड वर्कर भी एम्प्लॉय करना हमारे लिए नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा खर्चा कम है। तो इस तरह तीसरा वर्कर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय किया एंड 1,000 उसको भी वेजेस पे किए, और उसने जो प्रोडक्शन किया लेट अस सपोज इज वर्थ रुपीज 5,500, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो वेजेस से ज़्यादा है, तो ये वर्कर एम्प्लॉय करना भी हमारे नुकसान वाली बात नहीं है। तो इस तरह से वर्कर एम्प्लॉय करते चले जाएंगे, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेजेस और वर्कर की प्रोडक्टिविटी सेम हो जाएगी। लेट अस सपोज कि ये जो बात है ये 7th वर्कर पर जाकर होता है। हेलो, मान लीजिए 7th वर्कर, 8th वर्कर, 10th वर्कर, जो भी लेना है, कितना भी, मैं तो एग्जाम्पल। तो 7th वर्कर जब एम्प्लॉय करते तो 7th वर्कर को वेजेस पे कर रहे कितना? 1,000, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कितनी है? 1। तो कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करना चाहिए फर्म ने डिसाइड करना चाहिए? 7 whether 2 become equal to each other। हेलो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा करेंगे तो आप 1,000 पे करेंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी हो सकता है 700 रुपीज वर्थ की हो। इज दैट क्लियर? सो यू विल बी पुट टू लॉस, ठीक है। सो ये द फर्म विल डिसाइड on the basis of the principle of marginalism how many workers are to be employed, ठीक है। firm will go on employing the worker as long as the wages paid, his marginal productivity is more than the wages paid to him। is that clear? And the firm will stop at a point where the two become equal to each other, यानी wages और marginal productivity जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे उतने वर्कर एम्प्लॉय करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने क्या किया? प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म यूज किया, क्या करने के लिए? ये डिसीजन लेने के लिए कि मुझे कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने हैं, ठीक है ना। कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने से मुझको फायदा है, कितने से एम्प्लॉय करूंगा तो नुकसान है। आई होप दैट्स क्लियर। अब आप बोलो कि 3 भी तो कर सकते, 3 भी तो कर सकते, क्योंकि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है वेजेस से, बराबर। मगर वो बिल्कुल मिनिमम नहीं है ना उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब जब तक आप 4th, 5th, 6th वर्कर एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो उनकी भी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेजेस से ज्यादा होगी। हेलो हेलो, 7th वर्कर पे ये सेम हुआ ना, 7th वर्कर पर ये दोनों सेम हुआ ना। हेलो, वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब 4, 5, 6 में कि जो वर्कर है, बीच के मैंने तो खा गया ना, 3 के बाद सीधा 7 पे आ गया था मैं, ठीक है ना। तो बीच में 4, 5, 6 वर्कर होंगे ना, वो 4, 5, 6 वर्कर की प्रोडक्टिविटी उसके वेजेस से ज्यादा होगी, क्योंकि 7th वर्कर की दोनों सेम है। इज दैट क्लियर? मतलब यह हुआ कि मैं प्रोडक्टिविटी का नुकसान कर रहा हूं, अपना नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को खर्चा कम आ रहा था वेजेस का और उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। तो अगर मैं कम वर्कर एम्प्लॉय करता हूं तो जितना प्रोडक्शन ये 3 वर्कर कर सकते थे उतने प्रोडक्शन का मुझको नुकसान है। आई होप दैट्स क्लियर। इसलिए
कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करेंगे ये एग्जाम्पल के अनुसार? 7. When the wages and the marginal productivity of the worker become same. I hope that's clear. कम करेंगे तो भी नुकसान है, क्योंकि 4th एम्प्लॉय करेंगे तो आपको फायदा है. योर प्रॉफिट्स विल राइज, प्रोडक्शन विल राइज, बिकॉज देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द वेजेस. तो इसलिए कोई भी फर्म जैसे ये डिसाइड करना कितने वर्कर, तो कब तक the firm will go on employing the worker as long as their marginal productivity is more than the wages paid. Is that clear? And the firm will stop at a point where the two become equal to each other. Is that clear? So when we make use of such tools, principles to take the business decisions, it is called business economics. Economic theory becomes practical in nature. Is that clear? So business economics is more of practical side of economic theory. Okay. Now, कोई भी business firm does not work in isolation. The business firm does not work in isolation. It has to interact with so many people and organizations. So a business firm interacts with its distributors, wholesalers, customers. A firm interacts with the various government departments relating to tax and other law compliances. Okay, a firm has to interact with bank for its financial transactions, receipts, payment of cash, etc. यानी एक फर्म को बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करना है, और जो भी डायरेक्ट है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट. उसको हम बोलते हैं बिजनेस. सो बिजनेस एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ मे बी ऑफ पॉलिटिकल नेचर. आज शाम को एक मुख्यमंत्री होता है, आप सो जाते हो, सुबह उठते हो तो मालूम पड़ गया मुख्यमंत्री बदल गया. स्टेट का पॉलिटिकल एनवायरमेंट में चेंज आया. जो नया मुख्यमंत्री आया वो कैसी पॉलिसी बनाएगा तो आपके बिजनेस को अफेक्ट तो करेगा. ठीक है. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो भी बिजनेस में अफेक्ट आएगा. इकोनॉमी अगर अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को भी फायदा होगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. सोशल स्ट्रक्चर में आजकल बहुत चेंज आ गया ना. हम देखते पिछले कुछ सालों में सोशल सोसाइटी में बहुत चेंज आ गया, सोसाइटी के आउटलुक में बहुत चेंज आ गया, सोसाइटी की चेंज सोच में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है ना. हम आज ज्यादा झंडे लहराते हैं पहले के मुकाबले. ठीक है. ज्यादा डेकोरेटिव्स करते हैं पहले के मुकाबले. अरे दूर क्यों जाना. आपकी एकता कपूर ने कितना चेंज कर दिया. नागिन बनाकर, सुहागन चुड़ैल बनाकर सीरियल, या दूसरे ऐसे सीरियल्स बनाकर जो रियलिटी में नहीं होता वो दिखाते और लोग उसको इमिटेट करते. तो आपका चेंज तो हो रहा है ना. सोशल चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है. शादियों में जो आजकल होता है वो सब सीरियल्स की देन है. जो रीति रिवाज दिखाते हैं वो सब सीरियल की देन है. असली रीति रिवाज तो मालूम ही नहीं लोगों को. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. तो सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजी भी कई फील्ड में बहुत रैपिडली चेंज होती है. सॉफ्टवेयर में ही देख लें, कंप्यूटर में ही देख लें, बहुत रैपिड चेंजेस आते हैं. ठीक है ना. तो देयर आर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते. ऑल दीज एनवायरनमेंट टेकन टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट. इज दैट क्लियर? एंड बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है, और उस बदलते हालात में हर बिजनेस फर्म को अपना बिजनेस चलाना है, प्रॉफिट कमाना है. इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स. अंडरलाइन कर लेना. इट इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथडोलॉजी. एक सिंपल सेंटेंस याद रखने वाला है. इतना सारा लंबा चौड़ा कुछ याद नहीं रखने वाला है. आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से
आपको चॉइस कर लेना चाहिए कि याद करना है क्या नहीं करना है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर के एंड में, ठीक है, मगर एक बार चैप्टर रीड जरूर करना है। आ जाएं, डिसीजन मेकिंग इजी है क्या? मैं अभी बता रहा था, एक डिसीजन लेना है तो देर आर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में से आपको एक डिसीजन लेना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। सो प्रैक्टिकल यूज ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम फॉर्मल डेफिनेशंस कल देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के और फटाफट पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल